सो हे गाइस, मेरा नाम है सय्यम और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइट फिज़िक्स का। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लाइट होता क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन without the help of any air particles. There are three phenomena: reflection, refraction, and absorption. Reflection, bouncing back of light in same medium, and bouncing back of light in another medium. Absorption helps us to see everything, like my hand you can see, this is because of absorption. And reflection, I have said, in a polished surface. Angle of incidence, the angle made by incident ray and the normal. Angle of reflection means angle made between reflected ray and the normal. So you can take screenshot if you want. Now in the next I will take you to. Now in incident ray, as you can see, that angle made between incident ray and the normal is known as angle of incidence, and angle made between normal and reflected ray is known as reflected angle of reflection. So there are two laws of reflection in which it states that angle of incidence would be equal to angle of reflection, and the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and reflected ray all lie in the same plane. And now what is the meaning of angle of deviation? Angle of deviation means 180 minus 2 angle I and 180 minus 2 angle R. Object can be of two types, virtual or real. When incident ray actually meet at a point, it is called real object. When incident ray appears to meet, not actually meeting, appears to meet, this is known as virtual object. Now, this when incident ray actually meet, real object when incident ray appears to meet, real image when reflected ray actually meet at a point, then it is known as real image, and when reflected ray appear to meet at a point, it is known as virtual image, like this and this. Now if we say what is a plane mirror? Mirror whose reflecting surface is plane. So easy. Characteristics are the image formed by the plane mirror is always virtually direct, and distance of the object from the mirror is same as the distance of the image from the mirror, and sorry गलती से निकल गया, image is laterally inverted. Magnification of the plane mirror is always +1, means height of the image is equal to the height of object. So next if we goes to what is the ray diagram of plane mirror, all most tasks and the children always confused. So you can see the height of the image is same as the height of the object, height of the image is same as the height of the object. So now what is a spherical mirror? Mirror whose reflecting surface is spherical. There are of two types: concave mirror, convex mirror. Concave mirror is also known as converging mirror, and convex mirror is also known as diverging mirror. Like important terms regarding spherical mirror are pole, center of curvature, principal axis, principal focus, radius of curvature, focal length, and aperture. So you can see pole is the midpoint of the spherical mirror, and center of curvature is the center of the sphere from which spherical mirror has been carved out. Principal axis is the line joining the center of curvature and the pole. Principal focus is the ray of light which is parallel to the principal axis, and after reflection passes through principal axis known as principal focus. Radius of curvature, the distance between center of curvature to pole, and focal length is the distance between the principal focus and pole. And there is a relationship between radius of curvature and focal length, like r is equal to 2 times f, means focal length 2 times focal length होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिंपल सी बात. अपर्चर है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जैसे आप देख सकते हो ये ऐसे, ये डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहते हैं. अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया, तो आप देख सकते हो. ये रूल्स ऑफ डायग्राम आती ही हो गया आपको, तो ज़रूरी नहीं है बताना. तो अब आप देख सकते हो कि यही है रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स इन मिरर.
अब हम बढ़ते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी बिटवीन एफ, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट ऑन सी होगा तो ऑन सी बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो बियॉन्ड बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर एफ पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ये बिटवीन एफ एंड पी होगा तो इधर कहीं लार्ज बनेगी। ऐसे देख लो, मैंने कहा बियॉन्ड सी बिटवीन सी। अब सी होगा तो एकदम सी पे बनेगी, और अगर बिटवीन सी एंड एफ है बियॉन्ड सी होगी, और अगर एफ है तो इन्फिनिटी होगी, और अगर है तो इधर बनेगी। ठीक है, ये रे डायग्राम के कॉनकेव के है कि अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी डिमिनिश्ड इमेज पॉइंट साइज, और अगर इधर है तो फिर वो डिमिनिश्ड बनेगी। ये आप देख सकते हैं। इतने अच्छे नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो सबको बनता है गाइस। यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, वी नेगेटिव फॉर आ रहा होता है, पॉजिटिव फॉर वी, एफ नेगेटिव फॉर कॉनकेव, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। ऐसे ही रूल्स होते हैं, इसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव फॉर आर है, पॉजिटिव फॉर वी ई होती है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव फॉर आर है, पॉजिटिव फॉर वी ई, 1/v + 1/u = 1/f हमारा रूल होता है मिरर फार्मूला का। रिफ्रैक्शन होता है बाउंसिंग ऑफ बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दो तरीके के मीडियम होते हैं, डेंसर, रेयर। रेयर मतलब एयर पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, डेंसर मतलब एयर पार्टिकल्स आर अटैच टू ईच अदर। इतने आसान चैप्टर में आपको 10 मिनट में पूरा लाइट चैप्टर समझा रहा हूँ। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता चला, लाइट ऑलवेज वांट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन इट एंटर्स टू अ डेंसर मीडियम इट विल टेक द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। नोट, अगर रेयर से डेंसर आएगी लाइट तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, अगर डेंसर से रेयर आएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी इन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसमिट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन। स्नेल्स लॉ की होती है डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज refractive index of the medium. Refractive index, it is a property of the medium which tells about optical density of the medium. It also gives by what factors speed of light reduces. ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक है कि मतलब उनकी वैक्यूम में 1 होती है, ऐसे ऐसे। या आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो फॉर्मूला है बहुत बार पूछा गया, आप इसे लर्न कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, इसे भी लर्न कर लेना। टाइप्स कॉनकेव लेंस होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस हो गया, अगर हम लेंस के टॉपिक पे आप बन रहे। ठीक है, तो अब इसमें ना उल्टा हो जाता है, जो कॉन्वेक्स मिरर था वो कॉनकेव लेंस हो जाता है, और जो कॉनकेव मिरर था वो कॉन्वेक्स नहीं, मैं उल्टा बोलती है। देख, जो भी है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है वो अब पता है क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में बदल जाएगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में इंटरचेंज हो जाएगी, और नाम उनके आगे लेंस लग जाएगा। सिंपल सी बात। ये देख, कॉन्वेक्स मिरर के अब 6 हो जाएगी रे डायग्राम, और कॉनकेव मिरर के 2 हो जाए। जैसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के 2 थे और कॉनकेव के 6 थे, अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 है और कॉनकेव मिरर के 2 है। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज एट तो बनेगी। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, सेम ही बात है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब आता है साइन कन्वेंशन। सेम साइन कन्वेंशन है, बस एक चेंज है, सिर्फ मात्र एक चेंज। वी था नेगेटिव फॉर पहले था वी नेगेटिव फॉर रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इरेक्ट, पर इसमें इस वाले में चेंज हो गया, नेगेटिव वर्चुअल इरेक्ट के लिए हो गया और पॉजिटिव आर आई के लिए हो गया। सिर्फ यही चेंज हुआ है, सिर्फ यही, बाकी सब सेम है। पावर ऑफ द लेंस 1/f होती है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है यही, और मेरे लेंस फॉर्मूला 1/u 1/v - 1/u = 1/f, m = hi/ho विच इज इक्वल टू b/u, और उधर था mi इज इक्वल टू hi/ho विच इज इक्वल टू -v/. सो यहीं ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।